Hi friends, I am going to guide you कि knee pain, does it really need surgeries and what will be the stage where you need a surgery? Can you give a time? क्या आप अपने आप को time दे सकते हो कि you can prevent knee surgeries completely? Okay? Yes, knee surgery को compulsory prevent कर सकते हैं अगर ये method और ये technique हमने follow किया तो। First, डीकम्प्रेशन थेरेपी करके नया टेक्निक है, नया कॉन्सेप्ट है जो हमारे क्लिनिक में भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। डीकम्प्रेशन थेरेपी से नी को जेंटली ट्रैक्शन दी जाती है। जब नी ट्रैक्शन हो गया, जो जॉइंट के बीच में जो स्पेस कम हो जाता है, दैट स्टार्ट्स गेटिंग बेटर। सो ये जेंटल ट्रैक्शन का काम करेगा। एट द सेम टाइम जब आप ट्रैक्शन दे के छोड़ते हो, इट improves the circulation. So two things you have done. जब सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो यू विल बी इंप्रूविंग द न्यूट्रिशन टू दैट पॉइंट। जब जेंटल ट्रैक्शन देता है, यू आर रिलीजिंग द कंप्रेशन। दिस इज द न्यू डिवाइस विच वी हैव लॉन्च्ड इट विद द नी डीकम्प्रेशन थेरेपी। स्पाइनल के लिए और नी के लिए वी हैव स्टार्टेड द रोबोटिक डीकम्प्रेशन वेयर द नी इज बीइंग स्ट्रेच्ड कंप्लीटली। Now, the next important point is knee decompression plays only 5 to 15 to 20% of the role. But the next important thing, another 20% we need to add. So today, this video where I'm sharing the formula to make your knee better. Muscle strength testing. We need to understand which muscles are weak. कौन से muscles weak हैं और कौन से muscles tight है. जो weak है उनको strong बनाओ और जो tight है release them, completely release it up and make it lighter. Then the next is range of motions. अगर आपका knee joint आधा ही bend होता है तो how do we improve that knee joint? Very very important. We cannot compromise and say yes आपका knee घस गया है, you should not sit, you should not climb the stairs, you should not sit on the chair, you cannot fold the leg. No, इसको तो management बोलते हैं, adjustment बोलते हैं. I am talking about how do we treat it. Very 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 important. Next is postural analysis. जब when the knee get disturbed, आप right left हम चलने लग जाते हैं, तो इस posture को भी analyze करके how do we correct it, why it has formed, क्यों ये posture बिगड़ा है, जब तक इसको नहीं correct करते हैं, जब तक muscles को नहीं ठीक करते हैं, जब तक नी का रेंज ऑफ मोशन नहीं ठीक कर सकते हैं और जब तक हम कंप्रेशन फोर्स ना दें, एक नी को वापस रीजॉइंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिलीजिंग, जो मैंने बोला था मसल्स को रिलीज करना जरूरी है, मैनुअल थेरेपी है, हम लोग कायरोप्रैक्टर्स हैं, उसके थ्रू हम लोग उसको रिलीज करते हैं। सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मसल्स टाइट हो जाते हैं, मसल्स में नॉट्स हो जाता है। So trigger point release, immediately relaxation techniques, all these things will help in mobilizing the soft tissues. तो ही आपके pain reduce होंगे, नहीं तो pain reduction is not possible. Next is stretching exercises, जो adhesion, tightness, knots वगैरह हम लोग जो release करते हैं, we need to stretch them up properly. Next is proper knee alignment. Okay, bone alignment is very very important. This is the bone alignment 1 2 3. There should be a good gap when you align it. There should be a good gap. और जब तक ये gap अच्छा रहता है, no surgery is required. Bone alignment, muscles को strong करके रखिए, and then customized orthotics is very very important. When I say customized orthotics, अगर आपका knee joint, okay, अगर आपका knee joint ऐसा है, okay. If your knee joint is like this, then you need orthotics जो आपके knee joint को बाहर की तरफ लेके जा सके। अगर आपका knee joint ऐसा हो गया है, you need orthotics जो अंदर की तरफ लेके जा सके। This is very very important. All right. Next one, strengthening और stabilizing बहुत जरूरी है। Strengthening और stabilizing कब रहता है? जब आप ठीक हो जाते हो, हर एक मसल्स को उसकी स्ट्रेंथ जरूरी है। अगर ये स्ट्रेंथ नहीं मिला, हमने एक 4 एक्सरसाइज सिर्फ टॉवल को प्रेस किया, नी को बेंड किया, बैठ के पाँव हिला लिया। काफी लोग ये बोलते हैं हम लोग नी एक्सरसाइज रोज करते हैं। ये 3 एक्सरसाइजेस तो कुछ भी नहीं होने वाला है, डेफिनेटली कुछ भी नहीं होगा। हमें ना तो रिजल्ट्स मिलेगा, ना तो हम कंफर्ट हो सकते हैं। तो हमें स्टेप बाय स्टेप उस लेवल की एक्सरसाइजेस जानी है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट,
फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, एक नी को स्टिफ नहीं रख सकते हो, एक नी जॉइंट बेंड होके सीधा होना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इंप्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द नी जॉइंट। नेक्स्ट, रिजल्ट्स विथ एक्सरसाइजेस, जो हम रिजल्ट्स देते हैं, हाउ डू यू मेंटेन देम विथ एक्सरसाइजेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू यू मेंटेन? बाय रेगुलर एक्सरसाइजेस, अपना वेट को मैनेज करना है, एंड देन प्रॉपर फुटवेयर। इफ योर फुटवेयर इज रोल्ड इनसाइड, अंदर की तरफ घसते हैं तो घुटना अंदर की तरफ प्रेशर आता है, बाहर की तरफ घसते हैं तो बाहर की तरफ प्रेशर आता है। सो एक नी जॉइंट को आप लोग पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला जानना जरूरी है। तो यही फॉर्मूला आज मैंने शेयर किया है, एक नी को कैसे ठीक किया जा सकता है। इस वीडियो को आप लोग हर पेशेंट को शेयर कर सकते हैं जिनको नी को कुछ ना कुछ छोटे से बड़ा प्रॉब्लम है। हर प्रॉब्लम को बिना सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन, नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। बाय बाय।